Okay, so next part we have in our professional ethics is the ethics of lawyers. ठीक है, एक जो लॉयर होता है उसका प्रोफेशनल एथिक्स हम देख रहे हैं. ठीक है, सो हाउ द लॉयर्स डील विथ देयर प्रोफेशन. तो सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक आता है एक लॉयर की लाइफ में, वो है उसके क्लाइंट्स की हिस्ट्री. ठीक है, वो है उसके एक पर्टिकुलर क्लाइंट की हिस्ट्री. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ लॉयर, ठीक है, एंड आई हैव टू टेक द केस, ठीक है, ऑफ अ टेररिस्ट. एक इंसान मेरे पास आता है जो टेररिस्ट नहीं है, लेट अस अज्यूम कि उसके ऊपर एक चार्ज लगा है टेररिज्म का. ठीक है, सो शुड आई टेक दैट केस? Just imagine, should I take that case or not? Okay, because don't you think so it's against the concept of my nation? It's against my nation. मैं एक टेररिस्ट को डिफेंड कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन पॉइंट इज, अब जो मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है, एक लॉयर का प्रोफेशनल एथिक्स, वो क्या है? ठीक है, वो ये है कि जब भी उसके पास कोई आता है, एक्स वाई जेड एनी पर्सन, ओके, फॉर हेल्प, ठीक है, फॉर लीगल हेल्प, ठीक है, to defend him or her in the courtroom, then a lawyer should not see his or her name, background, ठीक है, religion, community, caste, color, anything, okay, and should defend that person as just an accused person. ठीक है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जब तक पर्सन एक्यूज्ड है, मतलब कि अभी उस पर सिर्फ इल्जाम लगा है, जस्ट द पर्सन इज ब्लेम्ड टू हैव कमिट सम क्राइम और सम एक्शन. ओके, अभी कोई गारंटी नहीं है कि उसने काम किया ही, अभी सिर्फ एक्यूजेशन है. ठीक है, तो जब तक एक्यूजेशन प्रूफ में मतलब एकदम क्लैरिटी में नहीं कन्वर्ट हो जाता कि हाँ इसने किया ही है, तब तक पर्सन एक्यूज रहता है, क्रिमिनल नहीं. ओके, एंड दैट इज द रोल ऑफ अ लॉयर, टू प्रोवाइड जस्टिस, टू फाइट फॉर जस्टिस. ठीक है, सो नाउ to have the scenarios, okay, what are the cases we have, what are the points we have in UPSC, what are the type of questions we can have, and what are the type of questions we used to have. ठीक है, so एक इंसान जिसके ऊपर लेट्स टेक द कि एक मर्डर केस है. ठीक है, मर्डर केस है और वो उसके ऊपर सिर्फ केस है, याद रखना, अभी मैंने सिर्फ बोला है कि उसके ऊपर केस है. ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उसने मर्डर किया है या नहीं. ये इंसान एक लॉयर के पास आता है, ठीक है, और इसको बोलता है, ठीक है, कि भाई मेरे पे मर्डर केस लगा है, ओके, एंड डिफेंड मी. नाउ द लॉयर कैन ओनली डिफेंड ओनली इफ द पर्सन विल टेल द ट्रुथ. ठीक है, वो लॉयर तब भी उस इंसान को डिफेंड कर पाएगा जब ये इंसान सच बोलेगा. तो जब लॉयर से क्वेश्चन आंसर राउंड में बैठता है अपने साथ, ठीक है, तो उसे सारी बातें पूछता है कि भाई क्या तुमने एक्चुअली में मर्डर किया है. ठीक है, सच बताओगे तभी डिफेंड कर पाऊंगा. और नाउ फॉर इंस्टेंस दिस पर्सन टेक्स, ठीक है, टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई हैव कमिटेड द मर्डर. Okay, now the lawyer knows that his or her client is guilty. Okay, the person who is sitting in front of him, ठीक है, is guilty. Now according to his moral values, ठीक है, according to the moral values of the lawyer, according to the human values of the lawyer should straight away go to the police or to the court and should tell them that yes, this person has accepted that he or she has committed the crime. ठीक है, but this person is not just a common person right now. This person is a legal practitioner, okay, is a lawyer right now, and the person has come for the defense. Okay, the person has come for the help. Okay, now what the lawyer will do? The lawyer will go to the courtroom, okay, ethical lawyer. Okay, this ethical, I'm talking about the ethical lawyer, not all the lawyers, non-ethical lawyers, not all of them. An ethical lawyer will go to the courtroom and will tell, okay, will cross question the the defense, okay, that yes, what happened on that day, how it happened, okay, why it happened, okay, and will tell the court that yes, we do not have any kind of proof that which proves that this person is not guilty. Okay, and the role of the lawyer is to ask the court to show some mercy on the client. Okay, that's the ethics of the lawyer. Okay, now next thing, whenever you are in the courtroom and you are having a case for yourself, then and at that stage you need a lawyer. Okay, now for instance, you don't have a lawyer or you cannot afford a lawyer. Okay, you don't have a lawyer or you cannot afford a lawyer. Okay, then the court provides you a lawyer from its side. Okay, court does that. Okay, from its side. Now it was the case of Haji Mastan.
ठीक है, हाजी मस्तान का केस है, ठीक है, और हाजी मस्तान who has been accused for who's a terrorist, right now a designated terrorist. So Haji Mastan was having no lawyer, and Haji Mastan when he was produced in front of the court, then court asked that where is a lawyer, then he said that he don't have a lawyer, and then court asked him that do you want us to provide a lawyer, he said yes, and then it is the duty of the court to ask the accused person that which lawyer you want. If you are having any suggestions, any options, you can tell. So Haji Mastan took the name of late Ram Jethmalani. Okay, so Ram Jethmalani was then sent a request from the court that Haji Mastan, an accused in the terrorist case, has asked you to be his legal practice, his defend to come in his defense. Will you come? It was just a request. So now, according to the professional ethics of the lawyers, whenever, take a mark my words please, whenever a request from a court has come, then a lawyer should take that not as a request but as an order from the court. Okay, and the person and the lawyer should go in defense of that person. ठीक है, ये उसका एथिक्स है, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स. अब इसमें वो तोड़ मोड़ करके करप्ट हो जाए, वो हमने देखा है किस तरीके से गवाह और सबूतों को, विटनेस को, ठीक है, और एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, ठीक है, उन्हें भी करप्ट कर दिया जाता है, वो दूसरी चीज हो गई. बट वी आर जस्ट डीलिंग विद द नॉर्मल प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द लॉयर्स, दैट हाउ दे वर्क इन सिंपल सेंस दैट ईच एंड एवरी लॉयर शुड नॉट सी द बैकग्राउंड, सेम लाइक डॉक्टर. ठीक है, जैसे डॉक्टर को नहीं देखना है किसी का बैकग्राउंड, उसका नेम, कास्ट, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह, उसी तरीके से लॉयर को भी ये सारी चीजें नहीं देखनी होती है. ओके, सो दैट इज वेयर देयर प्रोफेशनल एथिक्स स्टैंड्स. ओके, सो इसी मामले में कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान डिफेम हो जाता है, ठीक है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो नेगेटिव पॉपुलैरिटी में आ जाती है. Like if we take the name of late Ram Jethmalani, he is popular, but people have even criticized him that why he took the case of Haji Mastan and why he defended Afzal Guru as well. He defended both of them just because on the request, that is to be said, order of the court. Okay. Next, he also defended Manu Sharma. Manu Sharma, who was the prime accused in the Jessica Lal murder case. Okay. He did all of these things in the courtroom, but he just went for the defense. Okay. He never manipulated the facts and all, but all of these things made him got him negative popularity, and because of this negative popularity, his ethics was in question. But point is, the person was the Mr. Ram Jethmalani, Mr. late Ram Jethmalani, he knew that he is doing something good. Okay, not good, but he is performing his duties, he is performing his he is following his professional ethics, his code of conduct, whatever is taught to him in the books of laws. Okay, so am I clear with the this? So this is the concept with the professional ethics of the doctors and the lawyers, and the next comes into our list is the chartered accountants. Okay, ये जो chartered accountants हैं, हम कहते हैं कि अगर इनका मुंह खुला, ठीक है, अगर ये अपना मतलब अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, तो इंडिया से ब्लैक मनी का प्रॉब्लम चला जाएगा. Because we all know this point very well, that how our accountants are brilliant in converting black into white and white into black. Okay, and point is, if I'm having black money, I'm having team of chartered accountants with me, okay, who knows that I'm having black money, who knows that I'm having this is not the legal money I'm having. Okay, what if they tell all of this information to the government, to the police, to the media, or to any other person? Okay, India's black money problem will be eradicated. But point here is that according to the professional ethics of the chartered accountants, they are not allowed to share any of their information, any of the information of their clients with anyone, not even with their wife, husband, kids, family members, take care, their mother, father, friend, anyone. Okay, this is what the professional ethics of chartered accountants stands. Okay, so
Okay, so professional ethics of doctors, lawyers and chartered accountants. So we have to see all of them. The professional ethics. So we have doctors, lawyers and the chartered accountants. Okay, so to these two, firstly, that should not see the background patient or client. ओके, ना मुझे बैकग्राउंड देखना है, ना मुझे उनसे कुछ भी उनकी पर्सनल जानकारी चाहिए, ठीक है, कि क्या लैंग्वेज बोलते हो, क्या खाना खाते हो, ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट के हो या नहीं, ठीक। देन स्पेसिफिकली टू द लॉयर, ठीक है, अगर इनके पास कोई केस आता है, अगर इनके पास कोई क्लाइंट आता है कि this is my case, this is I have committed the crime or I have not committed the crime, okay, then what is the duty of a lawyer? Okay, he has to take the case first of all, can never say no. First professional ethics of the lawyer, that can never say no, and same is followed with the doctor. So we'll have the second point, can never say no. Okay, neither to any case, neither to any patient that you are defamed or you are unpopular or you're a criminal or something, can never say no. Take. Then specifically to lawyers, okay, that a lawyer should never think, that the person is, accused. Then accused means have committed a crime. Okay, ये उसे कभी नहीं सोचना है, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ accused है. Okay, then apart from that, lawyer, the request from court is equal to order. ओके, सो अगर हम बात करें लॉयर्स की, तो इनको इमोशनली डेड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दे कैन हैव देयर इमोशनल क्वोशेंट, एंड in fact they need to have emotional quotient with themselves. They need to be emotionally alive, emotionally active. Okay, so if you just deal with lawyers, so they need to be emotionally active. But if we deal with doctors, then they have to be emotionally inactive. ओके, सो एक को इमोशनली एक्टिव होना जरूरी है, एक को इमोशनली इनएक्टिव होना जरूरी है. दोनों के प्रोफेशन में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, ठीक, लेकिन जो कॉमन है वो कॉमन है, शुड नॉट सी द बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट और द क्लाइंट. ओके, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, रिच पर्सन हो, पुअर पर्सन हो, कोई भी हो. ओके, इट इज द ड्यूटी of the doctor as well as the lawyer. So this is where the professional ethics stands. Now the chartered accountants, यहाँ पर emotions की कहानी नहीं है. Okay,
accountants, chartered accountants, all those persons who are dealing with the finance. Even we have the finance lawyers, the tax lawyers as well. Okay, so ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इमोशनली एक्टिव या इनएक्टिव होके सोचने की. बस इनको क्या करना है, इनको इनका प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करना है. जस्ट फॉलो प्रोफेशनल एथिक्स दैट डू नॉट discharge any information of client. Okay, do not discharge any of the information of the client. ये 3 सिनेरियोज हैं हमारे पास. अब इन 3 सिनेरियोज को हम अपने एथिकल एक डिलेमा में डालकर देखते हैं. ओके, कि क्या होगा, कैसे होगा. चलो सबसे पहले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं. एज इफ वी ऑल नो दैट किस तरीके से भी हमने डिस्कस भी किया कि किस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, अपने क्लाइंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है. उनको पता होता है कि मेरे इस क्लाइंट के पास इतना रुपए, इतना डॉलर, इतना यूरो, जो भी ब्लैक मनी है यहां पर रखा है, क्योंकि वही निकाल कर उसको व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. नाउ थिंक ऑफ दिस पर्सन, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. You are having 2 things. First, your nation and your national, your professional ethics. Your professional ethics says that you do not have to discharge this. Okay, you do not have to disclose all of these things. And on the other side, you as an individual of a nation who is, having a financial crackdown, who is not that developed, and you know that point very well, that if this black money comes out into the market, the nation will, will face a boost into the economy. What will you do? Okay, now dilemma, a big dilemma, right? So what to be done here? Follow the emotion or follow the professional ethics? So what ethics teaches us? Okay, what ethics teaches us is this: always what comes first is always the professional ethics and your duty. Okay, always and always. Nothing is over and above your ethics. ओके, एवरीथिंग इज बिलो योर एथिक्स. ठीक, आप अपना एथिक्स फॉलो करो, आप अपना काम करो, बाकी आगे देखा जाएगा. ठीक है. बट यहां पर चीजें क्या हैं, ये इंसान, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज ऑल्सो पेड हैवीली, राइट, टू कीप साइलेंट, है ना. कीप साइलेंट ऑन व्हाट पॉइंट्स, दैट द क्लाइंट इज हैविंग दिस एंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी. ओके, नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. One side you have money, one side you have your nation. What will you choose? That's dilemma. Okay, few of them choose nation, few of them choose money, and that's where they are. Some of them, they both are corrupt. The one who choose nation is corrupt towards ethics of his or her profession. अगर मैंने ethics चुना, ठीक है, तो मैं nation के खिलाफ हूँ, और मैंने nation चुना तो मैं ethics के खिलाफ हूँ. ठीक है. Then lawyer, निर्भया केस का लॉयर, ठीक है, हथरस केस का लॉयर, ठीक है, द वन हु इज डिफेंडिंग द अक्यूज्ड knows this point very well, that yes, they have committed that heinous crime. Okay, but what he is doing, defending. Okay, why? Because he might be having his own opinion. That's not our point. Okay, he might be having his own opinion. That is never a point. But opinion does matters here. कि भाई, it's my professional ethics. Okay, I have been called to defend them, and I have to defend them. But on the opposite side, he knows that emotions of n number of people, the emotions of the whole India, is attached to this particular case. What should be done? Okay, should I see the emotions of the whole of nation? Should I see the emotions of the family who has faced this crime? Should I see the emotions of my family? Or should I see just my emotional ethics, just my professional ethics? Okay, so the lawyers at this stage, they are having too much of dilemma, whether to defend at a very perfect stage, or whether to just ask for mercy, that yes, the person has committed the crime, and defend and just provide them some mercy. Okay, so, and once again, the third one, the dilemma of the doctors. साहब, आप एक डॉक्टर हो, आपके ऑपरेशन टेबल पे, ठीक है, आपके स्टूल पे एक टेररिस्ट लेटा है. ठीक है, वो टेररिस्ट
जिसने अभी कुछ घंटों पहले ही आपके कलीग को मारा है, वो टेररिस्ट जिसने अभी कुछ घंटों पहले ही आपके किसी फैमिली मेंबर को भी मारा होगा, क्या उसका इलाज कर पाओगे? ठीक है, बात वो नहीं है कर पाओगे या नहीं, बात ये है कि करना पड़ेगा। ठीक है, this is what professional ethics means, and this is where we have to deal with the questions of ethics. This is where we have to understand the concepts of ethics. Okay, so now the next point is, when as an individual administrator we are dealing with such issues, let us take an example, let us take an issue, let us take a case, and the case is here that you are a particular administrator, IS officer, district collector in a city, in a district, and in your city you have come across a case, and the case is that there is a particular religious organization, a particular religious community who has built its own मंदिर और मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारा समथिंग XYZ, ठीक है, एट अ वेरी पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, एक लोकेशन पर उन्होंने कुछ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा टाइप का कुछ बना रखा है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है। ठीक है, और आप भी उसी रिलीजियस कम्युनिटी से हो। ठीक है, यू आर ऑल्सो फ्रॉम दैट वेरी सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ओके, विच कम्युनिटी हैज बिल्ट अ टेम्पल और समथिंग, ठीक है, और एनी रिलीजियस प्लेस। ठीक है, and because of that religious place, because of that particular building, the local area suffers a lot of traffic issue, traffic which creates the congestion on the road, and because of this congestion on road, because of this traffic, there is a lot of air pollution, and there is also a lot of noise pollution, and you are told that there is a nearby hospital and a school as well, which is disturbed because of this traffic. Okay, and now this case has come to your limelight, this case has come to your notice, and what are you going to do now? Remember two things. First, the question here is, the first point, that you belong to the same religious community and you are too much attached to that community. Okay, first thing. And second, you are an administrator. Okay, administrator or district collector, that means the chief of administration, chief of management in that district. यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के इस एक सिटी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक रिलीजियस कुछ एक प्लेस बनाया है, वो रिलीजियस प्लेस जो बना है वो आपका ही रिलीजियस प्लेस है मान लो। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक बहुत लग रहा है, बहुत ट्रैफिक की वजह से नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नियर बाई स्कूल है, हॉस्पिटल है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ओके, एट दिस स्टेज, आर यू गोइंग टू थिंक ऑफ दैट रिलीजियस कम्युनिटी? आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, ये तो मेरी कम्युनिटी है, तो मेरा ही रिलीजन है, और ये जो जिस टाइप का है जो यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, इससे तो मेरा बचपन का लगाव है, राइट? क्या कुछ ऐसा सोचेंगे? नहीं, मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को वहां से हटाना। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे इसमें ऐड कर लेते हैं कि अगर इसको हटाया गया, अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाया जाता है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ किया जाता है, देन व्हाट विल हैपन कि रिलीजियस हार्मनी जो है वो खत्म हो सकती है, एंड द राइट्स में टेक प्लेस। ओके, राइट्स हो सकते हैं, रिलीजियस हार्मनी को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, और बहुत बड़ा एक जो बोलते हैं ब्लडशेड, ब्लड बाथ हो सकता है। ठीक है, अगर उस स्ट्रक्चर को वहां से हटाया गया तो। हमेशा याद रखना आपको एथिक्स में, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे क्या किसी भी टाइप के क्वेश्चन जब आप एथिक्स में सॉल्व करते हो, तो आपको याद रखना है कि आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू टिल्ट लेफ्ट और राइट, यू हैव टू गो स्ट्रेट, सीधा जाना है। ठीक है, सीधा जाने का मतलब क्या है कि एक बीच का रास्ता निकालो। ठीक है, जिससे ना इसको नुकसान हो और ना इसको। ठीक है, जिससे इनका अगर फायदा ना हो तो इनका भी फायदा ना हो, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, सो आई हैव टू वॉच आउट दैट थिंग। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डील विथ सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि तोड़ना जरूरी है, तोड़ा तो रिलीजियस हार्मनी बिगड़ जाएगी। व्हाट आई कैन हैव, सो in such cases I'm having options such as, first thing कि मैं पहला उसमें टाइम बाउंडेशन लगा दूं ट्रैफिक के लिए, जैसे कि हम देखते हैं हर जगह होता है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक में यहाँ पर वन वे बना दो। ठीक, ऑप्शंस हैं आपको निकालने हैं, द मिड वे रूट। ओके,
कि भाई सवेरे जो 7 से 10 का टाइम है वो मंदिर का, वो बोलते हैं कि एकदम हॉटस्पॉट है, ठीक है। 7 से 10 के बीच में वो एरिया हॉटस्पॉट बन जाता है, बिकॉज सारे जितने भी श्रद्धालु वगैरह हैं वो इसी टाइम आते हैं, ठीक है। मंदिर है, मस्जिद है, कुछ भी है, ठीक है। तो इस वक्त क्या कर दो, वन वे कर दो, ठीक है। या फिर सेकेंड थिंग, नियर बाई पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवाओ, ठीक है। या फिर तीसरा, ठीक है, जो तीसरा रास्ता निकल के आ सकता है, टू हैव अ सेकेंड रूट, एक कोई दूसरा रूट निकाला जाए, सो दैट जिससे ट्रैफिक ना लगे, कंजेशन ना हो तो एयर पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो और नॉइस पोल्यूशन ना हो। ओके, सो यू हैव टू डील विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी तो हमने सारी चीजें डील कर ली, तो बहुत इजी लग रहा है, बट इसको आंसर के बिना देखो, आप उसी रिलीजियस कम्युनिटी से हो, आपका प्रोफेशनल एथिक्स बीच में आएगा, आपके सिविल सर्विसेज के टास्क बीच में आएंगे, आपका कोड ऑफ कंडक्ट बीच में आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसे तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि उसे तोड़ा तो फॉर श्योर दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, रिलीजियस हार्मनी टूट सकती है, खत्म हो सकती है, उसमें क्रैक आ सकता है, एंड यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन because you are the chief of the administration in that particular district. Administration means that you have to maintain the law and order situation, you have to maintain peace, okay. Then only you will be able to perform a good administration, then only you will be able to perform well, then only you will be able to see law and order, then only you will be able to see silence and harmony among the masses, okay. तो ये सारी चीजें मेंटेन करके चलनी है। So for that what answers we do have? तोड़ेंगे गलत हो जाएगा, नहीं तोड़ सकते, ठीक है। या तो फिर पहले उस कम्युनिटी को मनाओ, मनाने से भी अगर नई बात बनती है, ठीक है, तो चलो मनाने वाला कॉन्सेप्ट हटा देते हैं। या क्या करना है कि डाइवर्टेड रूट निकाल दो, वन वे कर दो, या टाइमिंग्स फिक्स कर दो कि भाई इतने से इतने टाइम तक ये रोड बंद रहेगी, ओके। सो दिस इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन वी नीड, क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन में लिख दिया कि नहीं तोड़ ही देंगे, ठीक है, तो रिलीजियस हार्मनी का क्या? आपने लिख दिया ऐसा कि नहीं तोड़ ही देंगे, उसके बाद से एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलवा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन करके रखे रहेंगे। तो पॉइंट इज, हमने भी देखा है कि कुछ एक स्ट्रक्चर कुछ साल पहले तोड़ा गया था, उसकी वजह से उसके बाद हमने फोर्सेस बढ़ाई भी थी, लेकिन हम राइट्स को नहीं रोक पाए, ठीक है। वो स्ट्रक्चर टूटा और राइट्स हुए, राइट्स ही नहीं हुए, टेररिस्ट अटैक्स भी हो गए, हमने देखा, बॉम्ब ब्लास्ट्स भी हो गए, ठीक है। एक कम्युनिटी ने किया तो दूसरी कम्युनिटी ने भी किया, दोनों ने बराबर मिलकर इसमें हाथ बढ़ाया, ठीक है। सो कब तक रोकेंगे? ऐसे नहीं रोक पाएंगे, ओके। सो दैट इज द पॉइंट, तोड़ना इज नॉट द ऑप्शन, तोड़ना इज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। यस, व्हाट आई कैन हैव, फर्स्ट थिंग कि भाई वन वे कर दो, ठीक, वन वे नहीं कर पाए तो ट्रैफिक ही रोक दो उस टाइम इस रूट पे, ठीक है। या फिर दूसरा एक कोई सब्स्टिट्यूट रोड निकाल लो उसके लिए, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर हैविंग। Now, apart from all these professional ethics, doctors, lawyers, chartered accountants, comes the most important point for us, that is the professional ethics of civil servants. The professional ethics of civil servants. Okay, so प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स क्या होगा? तो सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आएगा, जो भी हमने पहले अपने सबसेक्शंस में देखा था सिलेबस में, कि टू ही शुड बी द पर्सन, ही और शी शुड बी नॉन बायस्ड, that is should have neutrality,
ओके, सो नॉन बायस्ड होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए। तो नॉन बायस्ड और न्यूट्रल मतलब किस चीज के लिए, ठीक है, किन चीजों से इसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो अ सिविल सर्वेंट इन हिज प्रोफेशनल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, नॉट इन हिज प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, when you are as just as a simple human, then आप कोई भी religion follow करो, किसी भी community को support करो, doesn't matters. But when you are in your office, when you are performing your duty, okay, then you are not a common man, you are the servant of that common man, and the servant of the common man should not have any kind of biasness in his or her mind. Okay, so this is what we have to read, that non-biasedness and neutrality in civil services. ठीक है, तो किन चीजों से नॉन बायसनेस और न्यूट्रलिटी, तो दैट इज रिलीजन, सबसे पहला। इसी रिलीजन के अंदर से निकला हुआ कास्ट, इस कास्ट से निकली हुई कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से निकला हुआ लैंग्वेज, and yes, the food as well, clothing and everything. Okay, so religion से कोई रिश्ता नाता नहीं चाहिए, ना ही कास्ट से, ना ही कम्युनिटी से, ना ही लैंग्वेज से, ना ही खाने पीने यानी कि क्यूजिन से, और ना ही कपड़े से, क्लोथिंग से. And on the opposite side, one should always be non-biased and neutral politically. जितना रिलीजियस न्यूट्रलिटी की जरूरत है, उतना ही पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की जरूरत है. आई नीड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल, then only I will be able to perform justice, then only I will be able to perform my functions, my duties which are assigned to me by my service, okay, by the government. Then only I will be able to perform. Or else if I am politically not neutral, okay, then I will favor, okay, the local politicians. They may be right, they may be wrong. Right हुए तो कोई बात नहीं, बट रॉन्ग हुए तो क्या, तो फिर क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, और इन सब का नुकसान किसको उठाना होगा. हु विल फेस द लॉस of all this biasness and partiality? The common man, for whose service, for whose betterment I have taken the oath. Okay, where will I go? Okay, I have taken the oath to serve the common man, to serve the nation. But if I'm being partial, if I'm being biased, my oath is of no use. Okay, because if a politician will ask me, the local politician or a local minister or whatsoever, who is corrupt in nature, I'm a civil servant, he has asked me कि यार ये वाला ना साइन कर दो, 50 में मिल जाएंगे, 50 मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो 100 जो गए, ठीक है, वो किसके गए हैं, कॉमन मैन के. वो 100 जो आए होंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आए होंगे, हो सकता है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए आए हों, हो सकता है फ्लाईओवर के लिए आए हों, ओवरपास किसी ब्रिज के लिए आए हों, अंडरपास टनल वगैरह किसी चीज़ के लिए भी आए हों, वाटर पाइपलाइन के लिए आए हों, या बांटने के लिए ही आए हों, ठीक है, कैसे भी, ठीक है, और वो उसी इंसान का पैसा है जिस पे वो रिटर्न जा रहा है, क्योंकि उसी ने टैक्स भरा है, ठीक है, लेकिन ये पैसा कहाँ चला गया, इंडिया से भी बाहर, मतलब इंडिया के नज़रों में, आरबीआई की नज़रों में तो ये पैसा होगा ही नहीं इंडिया में, ये तो गायब हो गया, ठीक है. नुकसान कौन उठाएगा, ओवरऑल द कॉमन मैन. वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का तो नुकसान उठाएगा ही उठाएगा, बट उस पैसे के गायब होने की वजह से, मार्केट से वो पैसा हटने की वजह से, जो प्राइसेस में जो बड़े जो इन्फ्लेशन टाइप की जो चीज़ें हो सकती हैं, इन्फ्लेशन टाइप का जो कंडीशन बढ़ सकता है, उसकी भी मार कौन झेलेगा, कॉमन मैन. ओके, सो एक बहुत ही छोटे सिनेरियो से शुरू होता है, लेकिन इसको अगर आप ब्रॉडर पिक्चर पे देखो तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है. इसको अगर आप ब्रॉडर पिक्चर पर देखो तो ये पूरे नेशन को नुकसान पहुंचाता है. उसमें हो सकता है ये ब्यूरोक्रेट भी आ जाए, वो पॉलिटिशियन भी आ जाए, ठीक है. वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यहां पर भी बात सेम हो सकती है, ठीक है. सो इफ मी एज अ सिविल सर्वेंट आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज ऑनेस्टली, ठीक है, देन इंडिया और एनी नेशन विल नेवर फेस
any problems. Okay, all the problems they are which are there in existence is just because of the negligence of the legislature, you can say, of the executive, you can say, and of the common man as well. It's not about that only my government is wrong, my government servants are wrong. Somewhere I am also wrong. Okay, and I have to investigate myself. I have to have an inquiry on myself, that what am I doing? Okay, whatever I am doing, is it right? Whatever am I doing, is it going to favor me? If it is going to favor me, then for sure take the cycle. If it favors me, it favors my my family. It favors my family. It favors my society. It favors my society. It favors my community. It favors my community. It favors my nation. Right? So I have to take a step. Like for example, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन चल रहा है, ठीक है, हमने खाया पिया बाहर फेंक दिया. Okay, I have to think about myself, na, ki why I am thinking, why I am throwing the garbage on the road. Let me take the initiative. Okay, let me take the initiative, and I will throw the garbage only in the dustbin. Okay, let me do that, just me, and let my family do that as well. I will do that. Who knows? Watching me, some other person will do, है ना? And this chain may create, right? So this is the concept, that I have to take the initiative. I will take the initiative, and that initiative will be reflected somewhere in my nation, somewhere into the broader picture. So as Mohandas Karamchand Gandhi stated, that be the change you want to see in the world. Okay, and that is the only concept of our paper 4 ethics, that I have to be the change I want to see. Okay, like I want to see myself in beards, then I'll have to keep beards, and only I will be able to see myself as a bearded man in mirror. Okay, I'll have to if I want to see a man standing in mirror with a full tight body, gym vim wala person with all 6 packs and all, then I will have to go to the gym first. Then only when I will stand in front of the mirror, then only I will be able to see the 6-pack body, right? Okay, so let me take the initiative. I will have to take the initiative, then only that initiative will be reflected back into the society. Okay, and that is where the concept of code of conduct of civil services, the values of civil services stands, that they are the bedrock of the society. Okay, they are the first line of defense for the grievances of the common man. And what if the first line of defense failed to perform the functions? Okay, because they are nearest to the population, and they can only have the redressal of their grievances. What if they fail? And if they fail, who is going to suffer? Okay, okay, so what is needed? Non-biasedness and neutrality. Neutrality and non-biasedness in religion and politics. I do not have to tilt anywhere. So now let's take the example internationally. When we got independent, 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, सब कुछ ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, हमारी गवर्नमेंट बनना शुरू हुई 1950s, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड ऑल एवरीथिंग. Then at that stage, the first Prime Minister, Mr. Jawaharlal Nehru, came up with a new theory. Theory का नाम था Non-Alignment Movement, NAM. Okay, where he stated that India will not be part of the any world. यानी कि इस टाइम ना 2 दुनिया चल रही थी. It was the bipolar world at that time. ठीक है, first the West world, second the East world. West which was dominated by the US, and the East which was dominated by the then USSR. Okay, so कैसा था, पूरी दुनिया अपना साइड चुन रही थी, वेस्ट साइड को सपोर्ट करना है, ईस्ट साइड को सपोर्ट करना है. ठीक है, ऐसे में जवाहरलाल नेहरू केम अप विद द प्रिंसिपल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन आवरसेल्फ विद एनी पर्टिकुलर नेशन. हम किसी के साथ हाथ मिलाएंगे ही नहीं, हम अपना काम करेंगे. ठीक है, ये जरूरत थी उस जमाने की, ये जरूरत थी उस टाइम की, दैट वी डू नॉट हैव टू टिल्ट एनीवेयर. ओके, बट दिस टिल्ट बट दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज ब्रीच्ड. ठीक है, दैट ब्रीच किस तरीके से आया? वी टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएसएसआर. ठीक है, एंड आवर दिस टिल्ट एट दैट टाइम इट फेवर्ड अस, एट मैनी ऑफ द टाइम इट हैज गिवन अ ह्यूज लॉस टू अस एज वेल. ठीक है, शायद टिल्ट करना जरूरी भी था,
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एथिक्स से बाहर निकल के सोचना पड़ता है, ठीक है, बट वो टिल्ट हो सकता है, उस नुकसान भी पहुंचा दे, हो सकता है आपको फायदा भी पहुंचा दे. So this is a risk, the risk factor. So the next point which comes into the conclusion here, that this civil servant, professional ethics of civil servant, the next point will be that the risk factor. Should be ready to take risks. Okay. So इसका एग्जाम्पल अगर हमें समझना हो तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ बैट्समैन. ठीक है, एक बैट्समैन जो अभी क्रीज पर है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है, जब ये नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो इसको सिखाया जाता है कि यार शॉर्ट पिच बॉल आएगी तो ऐसे मारना है, ठीक है, फ्रंट फुट पे जाके खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, ठीक है, फुल लेंथ की बॉल आएगी तो उसे ऐसे खेलना है, ठीक है, बाउंसर आएगा तो ऐसे खेलना है, ठीक है, कुछ एक ऐसी बॉल आएगी उसे लीव कर देना है, डक कर देना है, नहीं खेलना है, ठीक है. तो ये सारी चीजें वो नेट्स में सीख रहा होता है, ठीक है. तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हम कहते थे सहवाग का ना पुल स्ट्रोक जो था, पुल शॉट, वो थोड़ा सा वीक था, ठीक है, एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है, इसको रियलिटी से जोड़ने की जरूरत नहीं है. तो सहवाग, वीरेंद्र सहवाग who said that he is weak in pull strokes and all, pull shots and all. तो उसको क्या बोला गया उसके प्रैक्टिस के दौरान कि भाई जब भी ऐसा कुछ आए ना, बाउंसर वाउंसर, तो उसको मारने की कोशिश मत करो, लीव कर दो, ठीक है. बट थिंक ऑफ दी वीरेंद्र सहवाग ऑन क्रीज, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग इज ऑन क्रीज एंड लास्ट 1 बॉल इज लेफ्ट एंड वी नीड 4, 5, 6 रन्स, ठीक है, लास्ट 2, 3 balls are left, okay, let's take, ठीक है, एंड वी नीड 5, 6 runs to win, ओके. अभी बाउंसर आएगा, ठीक है, तो इसको क्या सिखाया गया है कि बाउंसर आने वाला है, तो बाउंसर जब भी आए तो लीव कर देना, नहीं खेलना, ठीक है. बट थिंक ऑफ द सिचुएशन, कभी सिचुएशन में ट्रेनिंग में ये तो नहीं बताया गया ना, उसको प्रैक्टिस में तो नहीं बताया गया कि यार लास्ट की बॉल बचेगी 2-3, उसमें 6 रन चाहिए होगा तो मार देना. तो वहां पर वो क्या सोचेगा कि अरे नहीं, मेरे को तो बाउंसर बॉल से डर लगता है, मेरा ये जो स्ट्रोक है, मेरा जो शॉट है ये वीक है, मैं नहीं खेलूंगा. वो क्या करेगा, वो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है. सो समटाइम्स द सिचुएशन ऑन फील्ड डिफर्स विद द सिचुएशन इन ट्रेनिंग, okay, and then you have to take the spontaneous decision that I have to go with this shot or not, and if I have to go with this shot then how, okay. तो सहवाग अगर वो पुल स्ट्रोक खेलते हैं अच्छे से, ठीक है, वो 6 रन मारते हैं तो इंडिया विंस द मैच, ठीक है, बट इफ नॉट देन विल लूज. तो उनका क्या, वहां पे क्या डिसाइड करेंगे कि अगर मारा तो लग सकती है, ठीक है, हो सकता है बाउंड्री के बाहर बॉल चली जाए तो हम जीत सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं मारा तो हार जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है. तो क्या है, तो यहाँ पे हार का जो चांसेस है वो ज्यादा है, ठीक है, 51% लेट्स टेक के हार के चांसेस ज्यादा हैं, 49% जीत के ही चांसेस हैं. तो यहाँ पर वो क्या सोचेगा, मारेंगे तो भी हारेंगे, नहीं हारेंगे तो भी नहीं मारेंगे तो भी हारेंगे, तो एक काम करते हैं, मार के ही देखते हैं, शायद लग जाए, ठीक है. तो दैट इज द risk factor, okay. So that the same theory is followed here into the concepts of civil services and to the professional discharge of the functions of the civil services, that they should be ready to take the risk, okay. Now quoting the example, इसका एक दूसरा केस निकल कर आता है. केस में ऐसा है कुछ कि you are the superintendent of police of a very particular district and यहाँ पे ना riots होने के चांसेस हैं, ठीक है, कुछ riots हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड राइट्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली ब्लड बाथ, ब्लड शेड, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कोई नहीं चाहता वो सब कुछ, ठीक है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू स्टॉप द राइट्स, एंड इट हैज कम टू माय नोटिस दैट देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टू फेमस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है. 2 कम्युनिटीज के बीच राइट्स होने वाले हैं और इन दोनों कम्युनिटीज में ये इंसान जो है फेमस है, ठीक है, और ये अगर बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि मत लड़ाई झगड़ा करो, बी साइलेंट, नॉन वायलेंस एंड ऑल एवरीथिंग, है ना, तो राइट्स रुक सकते हैं. बट पॉइंट इज दिस पर्सन इज इन जेल, ओके. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जुडिशरी को अप्रोच करके उनको बोलूं कि इसको बाहर कर दो, इसकी बेल दे दो, ठीक है, क्योंकि ये सब करने में कुछ भी नहीं, अगर मैं बहुत जल्दी भी करूंगा तो 2-3 घंटे 4 घंटे चले जाएंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अभी तुरंत क्विक एक्शन लेना है, ठीक है. हाउ डू आई हैव टू हाउ कैन आई टेक दिस डिसीजन, इट्स नॉट माई डिसीजन, आई कैन नॉट टेक एनी प्रिजनर आउट ऑफ द जेल, ओके. अगर वो पुलिस कस्टडी में है तब भी आई डू नॉट हैव दिस अथॉरिटी, ओनली द जुडिशरी हैज दिस अथॉरिटी,
ठीक है, बट पॉइंट इज हियर, सी द प्रोफेशनल एथिक्स। वन साइड यू हैव टू सेफ गार्ड द लॉ, ठीक है, एक तरफ आपको लॉ को बचाना है कि भाई वो प्रिजनर है, वो एक कल्प्रिट है, क्रिमिनल है, उसे सजा दी गई है, वो जेल में है, मैं उसको बाहर नहीं ला सकता। सेकेंड थिंग, you are a civil servant, ठीक, you have to safeguard the lives as well, you have to, you have to save the law and order as well, you have to maintain peace as well, and that peace and law and order can only be maintained because with the help of that prisoner. Okay, what to do now, right? क्या कर सकता हूँ मैं इस मामले में? प्रिजनर है, जेल में है, ठीक, बाहर निकालेंगे वो राइट्स रोकवा सकता है, ठीक है, उसकी एक आवाज़ पे लोग शांत हो जाएंगे, राइट्स रोक सकते हैं, लेकिन वो जेल में है। आप उससे बात करने गए कि भाई बाहर निकल के एक बार बोल दो, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि ऐसे बाहर निकले, मेरे को जेल से बाहर करो, तब बोलूँगा, ठीक, आपके पास इतना टाइम नहीं है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ओके, सो थिंक ऑन इट, देन let me know in the next, before the next class in the comment section, and then we will discuss all of the rest of the points, and we'll go to the main core of our ethics with the syllabus and all. And so far till now we have discussed the professional ethics of the doctors, lawyers and chartered accountants. Please do not think that we are going out of the box of the syllabus. No, absolutely we are not. This is just what I'm trying to create is the base. मैं आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये बेस बना लोगे तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ लोगे, समझ लोगे, आगे समझ में आती रहेंगी चीज़ें। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम सिलेबस कि हम कुछ ज़्यादा ही फिलॉसफी में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं, हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत है, ठीक है, जो वो चीज़ पढ़ रहे हैं हम जो हमसे यूपीएससी मांग रही है, जो हमसे पूछ रही है, ठीक है। सो प्लीज़ गिव योर 100% attention, please give your focus, and I assure you, you will score very brilliant marks in ethics paper 4. Okay, that's it. Thank you.